हिमाचल प्रदेश का भाषा एवं संस्कृति विभाग हर वर्ष 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाता है। इस वर्ष 2025 को राज्य स्तर पर यह आयोजन गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल कॉलेज, रामपुर बुशहर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक श्री नंदलाल जी ने शिरकत की। कार्यरत है, हमें बड़ी खुशी होती है कि इस बार इन्होंने यहाँ रामपुर में लाके इस तरह का किया और हमको ऑल द वे आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला। कार्यक्रम का आगाज इसी कॉलेज की छात्राओं ने पारंपरिक नाट्य से किया। पहला सत्र तकनीकी था। इस सत्र में डॉक्टर विजय स्टोक्स ने ऑडियो वीडियो के माध्यम से कोटगढ़ की पहाड़ी संस्कृति पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। पत्र के पहले भाग में उन्होंने लैंग्वेज फोनेटिक्स पर बोलते हुए कहा कि देवनागरी लिपि में 16 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जबकि पहाड़ी में संस्कृत से 6 स्वर और 23 व्यंजन ज्यादा हैं। इसी कारण पहाड़ी बोली सुनने में हिंदी से अलग लगती है। पहाड़ी में कुछ स्वर लंबे खींचते हैं और कुछ बहुत ही लघु हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पहाड़ी में एक व्यंजन वां है, इससे एक शब्द बनता है वांस, जिसका अर्थ है अमावस। ऐसा ही एक शब्द है वारी। वारी उस अनाज को कहते हैं जो ताठ में देवता के सामने पूजा के वक्त रखा जाता है। Wild birds nest at night, so that's was. And then there's the word once with the a sound, and that's Amavasya. And for those people from this area, if you look at records from the 1800s, and very old people in the villages, then the peak that we have is not called Hatu. The original name was Watu. So far, these are the only words that I found starting with ver. And what happens is, we tend to change the ver sound into a ber sound. उन्होंने बताया हाटू का पुराना नाम वाटू था, जो कि इसी अक्षर वां से बना है। पहाड़ी में अंग्रेजी के ए अक्षर के लिए कोई स्वर नहीं है। हिंदी में ए के लिए अ का शब्द है, जबकि पहाड़ी में अ के बजाय ओ बोला जाता है। Okay. Let's look at another word, butter, choshana. People from the plains can't pronounce it, choshana. And so the butter is choshana, and it is my eyes are good. Navneetam in Sanskrit, which is not like this. And then there is makhan in Urdu, and makhan in Hindi also, and makhana in Punjabi. So again, you have a word like choshna. It has to be if it has come from some other language, God alone knows what it is. Because I don't see the social intercourse that we would have had from this economy. Let's just take one more, because you all know what a rainbow is. A rainbow in Pahadi is called a paneri. That's the correct pronunciation, paneri. And so if you look at it in, in Sanskrit, it is Indra Dhanasha. That's very different from paneri. And the other ones are also very different. So clearly there are a whole host of words whose origins we don't know where they are from, but they're not related to Sanskrit, Hindi, Urdu and Punjabi.
Now God alone knows, we might have interacted with some other. It can't be the Sino-Tibetan languages, so it's not Kanari or Boti and whatnot. Those are Sino-Tibetan languages. Now here, in this chart, I'm going to show you some words where our words are very similar to those from Sanskrit. So the first one is cow. Well, let's not take cow. Let's take some else one. If I take a mouse, mouse is musha. In our language is musha, and it is mushaka in Sanskrit. So it's pretty close, because when you borrow a word from a different language, the phonetic structure and pronunciation changes. So that should be acceptable. And then you take a parrot. A parrot in our area is called a shoo. And it's a shuka in Sanskrit. And it's totally tuta, etc. in the other languages. And then let's take only one other word. You have the word for door, which is a dwar. We call it a dwar. And it is dwaram in Sanskrit. And you could. इस विश्लेषण का सार यह निकलता है कि यदि हमें पहाड़ी बोली को भाषा का रूप देना है, तो इस निमित्त हमें देवनागरी लिपि के स्वर और व्यंजनों की संख्या उनकी ध्वनि के अनुरूप बढ़ानी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पहाड़ी के लिए देवनागरी लिपि के अक्षरों की तालिका को अलग से अद्यतन करना होगा। So whenever I meet someone, I ask them to repeat the Varnmala. If they say Gaga, then I know you're from Simla district. It has to be like that. And then Pahadi has 23 more concepts. उनके व्याख्यान का दूसरा भाग पारंपरिक लोक संगीत पर आधारित था। इसमें उन्होंने लोक संगीत की 3 विधाओं लामण, लाहणे और गीत का विश्लेषण किया। इनमें पहली 2 विधाओं लामण और लाहणे में वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। What is a chant form? Chant form is where the music doesn't go way up and down. It's like this. For example, if I say Om Bhur Bhava Swaha, that's a chant form. The music is not going up and down. And then finally, we have the Geet. The Geet, which is the songs that are accompanied by musical instruments. And rhythm has a very important role here. And this is closely associated with dance. A very good song. I'm going to show you all. I'm just shortening this. And there are many other structured melodies that are used in these lamans, and it's been difficult to find pieces of that. So here is another laman. It says, "Bojiye sawiye mere sagega, dane pani rizika, mare kile ayatoyete." It's a very long. It essentially says what's written will happen. It's a long way of putting it. What's written will happen. And I'm going to play several melodies for you, just to give you an idea. Because that's what culture is all about. Sorry, I'm trying to hasten it. Oh God, I don't know how to do that. No, let me
the cultural heritage, for whatever it's worth. Listen to the change in the tune. व्याख्यान के तीसरे भाग में उन्होंने 7 तरह के पहाड़ी बाजों के बारे में बताया। हॉर्नशिंगो, करनाल, कावड़ी, डोल, नगाड़ो, बाणो तशरनाए। व्याख्यान के चौथे भाग में उन्होंने पहाड़ी नृत्य के बारे में बताया, जिसे नाच कहते हैं और नाटी कहते हैं। उन्होंने 3 तरह की नाटियों का जिक्र किया: फूक की नाटी, भीतरी नाटी, भारी नाटी। Baja cycles, and there are many different forms. There's a slow dance, which is the best if you can do it, and that's why I admire my friend from Kullu. That's a dilly nut. बाहर खुले में नाची जाने वाली नाटी माला के आकार में नाची जाती है। भारी नाटी में 8 स्टेप होते हैं, जिन पर 4 ताल में बाजा बजाया जाता है। व्याख्यान के 5वें भाग में उन्होंने देवताओं के बारे में बताया। कोटगढ़ में 5 देवता हैं। प्रत्येक देवता का अपना मंदिर, अपना बाजा, बजंतरी, गूर, पुजारी और कारदार हैं। पुराने समय में आय के लिए इनके पास अपनी जागीरें हुआ करती थी। काश्तकार देवता की जमीन पर काम करने के एवज में मंदिर में एक भाग देते थे, लेकिन आजादी के बाद वह जमीनें उन्हीं लोगों में बांट दी गई। उन्होंने कोटगढ़ के प्रसिद्ध देवता चतुर्मुख का विशेष तौर से जिक्र भी किया। अपने शोध पत्र का सार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी भाषा का स्वर विज्ञान संस्कृत से भी ज्यादा समृद्ध है। युवाओं को अपनी पहाड़ी बोली में बातचीत करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें पहाड़ी वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीखना चाहिए। यदि इसकी शुरुआत स्कूलों से हो सके तो और भी बेहतर होगा। टीवी पर भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाने चाहिए। डॉक्टर विजय स्टोक्स श्री सत्यानंद स्टोक्स जी के पोते हैं, जो अमेरिका से सेब की पौध लेकर आए थे और भारत में सर्वप्रथम कोटगढ़ में सेब उगाकर उन्होंने पूरे प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के काश्तकारों को सेब लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। डॉक्टर विजय स्टोक्स आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी रहे हैं। वे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं। डॉक्टर विजय स्टोक्स 35 करोड़ की लागत से थानादार कोटगढ़ में 20,000 वर्ग फुट के एरिया में सत्यानंद मेमोरियल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें पहाड़ी संस्कृति को संजोकर रखा जाना
प्रस्तावित है। कार्यक्रम का दूसरा सत्र पहाड़ी कविता पाठ का था। इसमें विभिन्न कवियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मदन हिमाचली जी ने किया। प्रस्तुत है कुछ झलकियां। हमारे लोगू रो काजा जागरे जातरे मारे देशों का रिवाज नवे एथीरे फौजा दे जाओ देशे दुनिया दी नाव कमाओ रक्षा देशोरी कर दे बारी देशोरी खातिर जान गवाओ। ग्रह मिली जुलियो बांडाते अपने दुख दर्द छेवड़ी आनाती छेण झुकड़ी टोली लाते मर्द खेचा खोड़े काम करनो काने उखड़ते कावणे पिछनो मांडाते खोड़ा दी धान धाटुरी स्टो सोदी लाणो छोटी छेवड़ी समझाती अपनो मान हिउंदे मिने जाए जोंती बुई धेणी आती में चले गिव सीड खूब गेन खूब बोड़ाते साथी राची कथेरु गावते कथा मॉडर्न भाई हमें मशीनों साथे हमारे सब काम चुली काए दूध लाने री मधानी फाशनी गडोल टूनी कोई जेनो आटा बाटने के मशीन पूरी भी मशीनों दिए बेचानो कई घंटे रे मिनटों दे निपटायो दिन दे काम तभी कसी काय मिलने रा हम आगे नी टाइम पुराने मानू सुनाओ अपनी कहानी प्राणे मानू सुनाओ अपनी कहानी दूर पनेरो आगर टोकने भरे भरे रो आनते हमें पानी एक दूजे रा साथ भी करना दो चार गपलाए लोनी सुहानी हमें तो भी सारा इनो के ना तड़पाया कर क्यों पड़ी गुआ बेटा ने छेड़ी गिव दूध तू खाया कर अपनी आमा बापूरा सारा इनो के ना तड़पाया कर अपना सब कुछ लाई दिया इन्हें अपना सब कुछ लाई दिया इन्हें तेरी पढ़ाई कराने के ओरे पाड़ा दिलाए बूटे तीना का जेबे कैश छूटे नोखिए देखदा रोए से लोग जोन बोलाते हमले बुक